friends, so I just reached at our homestay at Kibber, and you can see the bright sunlight, and it's pretty warm outside, I mean comparatively. So let's go to our homestay. Come with me. जुले जी कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया जी। आज तो हम बहुत अच्छा पहुंचे, रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी। नहीं नहीं मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चलिए हम चलते हैं अपने होमस्टे में। So this is our homestay, and we are coming here for last couple of years before Corona as well, and we mostly run it during winters because winters में ही हम अपना snow leopard के tours करते हैं. So come with me and I'll show you how our homestay is. Come. So पहले मैं आपको अपने guest setup में लेके जाऊंगी. Then I'll tell you all about this floor. So let's come to the first floor. So these are the stairs taking us to the first floor. I will just put off my shoes over here. Come with me. So as soon as we reach our homestay, this is the first place to come because this is very warm, very sunny, and they have kept hot water for us, tea for us, and also a little bit of soup. So I will be comfortable for some time over here, and Thinleji is my host, and he's also my lead naturalist for all our tours. So we will just do some chit chats about what will be the tour like, and then I'll take you to our rooms. Okay guys. So guys, this is hot water, and I'll suggest that whenever you are reaching Spiti or even any cold area, please start your day with warm water and keep drinking warm water as much as possible, and that's what I'm doing over here. And post this I'll be having, because I'm a tea lover, and I'll be having my favorite tea, and this is my favorite Tibetan mugs. I have a lot of them at my house in Delhi as well. So let's, I'll enjoy some tea. But meanwhile, I also want to talk to you guys. So whenever you are reaching the homestay, please टेक केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स दैट जब भी आप यहाँ पहुँचेंगे आपको एकदम से अपनी जैकेट्स ओपन नहीं करनी है, आपको थोड़ा सा वेट करना है. आप आइए, बैठिए, पहले ड्रिंक सम वार्म वाटर, ड्रिंक सम वार्म कॉफ़ी, एंड देन स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स. And if you're not feeling well, if you are feeling like there is a thin air, or you are feeling cold, or you have a bit of headache, take it easy. Take it slowly. My team is here to help you out. आप लोग आराम से रेस्ट कीजिए, अपने रूम में जाइए, रेस्ट कीजिए, बट डू नॉट हरी अप. ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अगर हम अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए तो हमें स्नो लेपर्ड के लिए भागना है. नथिंग लाइक दैट, बिकॉज टेम्परेचर एंड ऑल्टीट्यूड हिट सो बैडली दैट यू विल नॉट इवन रियलाइज कि आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो गया है. So for overcoming this altitude sickness, first day should be a complete rest. और अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, हेडेक है, नींद नहीं आई है, तो नेक्स्ट डे भी आई विल टेल यू कि आप लोग रेस्ट कीजिए, बाहर मत जाइए, एंड यू विल बी डेफिनेटली ऑल राइट बाय द सेकेंड प्रॉपर डे. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जब भी आप स्पीति आ रहे हैं उससे कम से कम 15 दिन पहले आपको स्मोकिंग क्विट करना है, ड्रिंकिंग क्विट करना है, एक्सरसाइज करनी है, कंज्यूम मोर garlic, take soups. Even if you are coming here, try to take soups every day with every meal, like that. चाय पीजिए आप, कुछ भी liquid will go on. And उसके बाद so this is the advice from me, and now I'll take you to the tour of our homestay. So guys, this is our area for lunch, dinner, breakfast, post-processing, discussion, and all that. Now I'll take you to our rooms. Come with me.
So this is our first room. It's having a double bed over here. विंडो से आप पूरा माउंटेन व्यू देख सकते हैं, दोनों तरफ का किबर, और इस तरफ से चीचम विलेज का व्यू है, उस तरफ से किबर विलेज का व्यू है. सो बोथ साइड यू कैन सी दी माउंटेन्स. और ये जो डबल बेड है इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है, ताकि आप नाइट में जब सोने जा रहे हैं तो आपको वार्म बेड मिलेगा एंड यू विल बी कंफर्टेबल. अपार्ट फ्रॉम दिस, थिनले जी, दिस इज आवर गैस हीटर, राइट? ये हमारे गैस हीटर है और इसको हीटर के थ्रू जलाएंगे. रात को हमें बंद करना पड़ेगा, लेकिन रूम का टेम्परेचर एक बार सही बढ़ जाए ना, तब इसको हम बंद कर देंगे. बट इसके अलावा हमारे पास एक इलेक्ट्रिक हीटर भी है. अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे पास वो इलेक्ट्रिक हीटर भी रहेगा. और इलेक्ट्रिक केटल भी हमने यहाँ पे रूम्स में दी है, अगर आपको रात में गर्म पानी करना है. इसके अलावा हम आपको केटल में गर्म पानी भी देंगे इन एवरी रूम. सो दिस इज आवर सेकेंड रूम नाउ. ट्राई करना ना कि सेम ही आवाज आए. Yeah, so this is our second room, and it also has a very nice view of the mountains over there. And last year we really spotted the snow leopard over there. वहाँ पे उस रिच पे हमने स्नो लेपर्ड देखा था. सो इस रूम के अंदर हमारे पास सिंगल बेड्स हैं, और आप देख सकते हैं वी हैव गिवन क्विल्ट्स एंड ऑल. और यहाँ पे ट्रेडिशनल तंदूर है यहाँ पे हमारे पास, जो कि विद इन 15 मिनट्स रूम को अच्छे से हीट अप कर देता है. सो दिस इज़ आवर ट्रेडिशनल तंदूर. इसके अलावा बेड के अंदर वी हैव ऑल दीज हॉट वाटर बॉटल्स विच वी विल गिव टू एवरीवन. आप जब सोने आएंगे उससे पहले आपका बेड के अंदर ये बॉटल्स रख दी जाएंगी, सो दैट जब आप सोने आते हैं तो आपको अपना बेड एकदम वार्म मिले. So these are the bottles. You don't need to carry these. We have these at the homestay. So guys, our porters are getting my luggage in my room. So अभी मैं उसकी वीडियो नहीं बनाऊंगी. एक बार अपना सारा सामान सेटअप करके मैं अपने रूम की वीडियो आपको दिखाऊंगी. उससे पहले मैं आपको लेके चल रही हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, और मैं वहाँ पे बताऊंगी कि वहाँ पे हमारे पास क्या क्या. आइए मेरे साथ. चलते हुए लेना, नहीं चलते हुए. So ये हमारा एंट्रेंस है, यहाँ से हम लोग आए थे. ये हमारा किचन है. यहाँ से आपको डिलीशियस मील प्रिपेयर होके, वेरी नीट एंड क्लीन किचन इज ओवर हेयर. अगर आपको कुछ भी चाहिए आप हमारे कुक को बता सकते हैं, हमारे ठिनले जी को आप बता सकते हैं. और फोर्थ रूम. सो फोर्थ रूम में भी एक ट्रेडिशनल हीटिंग सिस्टम यहाँ पे हमारे पास है. पूरा सिटिंग अरेंजमेंट है. अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं प्राइवेसी में तो आप यहाँ बैठ सकते हैं. और यहाँ पे अभी हमारे पास एक सिंगल बेड है, बट बहुत ही कंफर्टेबल है ये रूम भी, बिकॉज ये बहुत गर्म रहता है रात में. और कभी कभी what our groups do is they put their cameras and luggage in this room so that उनके रूम के अंदर स्पेस का प्रॉब्लम नहीं हो. So in all our groups, you know, the entire homestay is all yours. You have to be comfortable over here. और अब मैं आपको लेके जाऊंगी मेरे रूम में. Yeah, so this is the third room, and this is my room currently. Come, it's a little bit messy because everything is spread out. We were just getting ready to go out for shooting some wildlife and snow leopards. And so this is my room with the Kibber village view. This is the local traditional heating system. But रात में हम इसको सिर्फ एक बार ऑन करते हैं और उसके बाद we normally just close this down.
क्योंकि रात में रूम हीट अप ही रहता है, दोबारा हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि व्हेन वी हैव टू गेट रेडी इन द मॉर्निंग फॉर स्नो लेपर्ड और गोइंग आउट फॉर शूटिंग सम वाइल्ड लाइफ, व्हाट ऑल you should wear and how to prepare. So come with me. So first of all you have to do layering. So नीचे मैंने एक पाइल लाइंड पैंट पहनी है. So this is very warm, like -5. इसके ऊपर मैं एक अपना स्नो पैंट्स पहनूंगी which will give me a coverage of another -degrees. And फॉर जैकेट्स, या जैकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ऊपर आपको एटलीस्ट कुछ अंदर वार्म पहना है. जैसे मैंने एक यहाँ पे वार्म स्वेटर और फ्लीसी पहनी हुई है. नाउ लाइक राइट नाउ इट इज़ वेरी वार्म आउटसाइड, तो मैं फ़िलहाल ये पहन रही हूँ. दिस इज़ लाइक 100 grams जैकेट, बट वेरी वार्म. इट इज़ लाइक अप टू -10 degrees. और ये मेरा इनर लेयर है बिटवीन द मेन जैकेट एंड माई फ्लीसी. सो आई विल फर्स्ट वेयर दिस एंड देन आई विल कैरी माई जैकेट बिकॉज राइट नाउ द टेम्परेचर आउटसाइड इज -15. So I might prefer this jacket. So this is my jacket. This is -20 and it will be very comfortable. It has got a good hoodie and आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी, एयर इंसुलेट नहीं होगी. उसके बाद कल जैसे कि स्नोफॉल का प्रिडिक्शन है, आई थिंक आई विल गो विद ईदर दिस इज़ -35 और दिस इज़ माई लास्ट गो टू बिकॉज जब अगर बहुत ही अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग आपको ट्रैक करना है, दिस इज़ -60. आई कांट जस्ट वेयर इट एवरी डे एंड -60 में ऐसा लगता है कि आप उबल गए हो. सो most of the time I will wear this one -35 or -20 or the lighter one with the -10. For shoes I will wear a snowshoes. This is again -60 but is temperature mein it keeps me really warm. And if we are going for the snow trek, I'll use these crampons. So ये सब पहन के मैं बाहर जाऊंगी and some warm caps, something to cover my nose. And yes, gloves is very important. So gloves की यहाँ पे 2 लेयरिंग होगी, एक ये अंदर वाली लेयर एंड ये बाहर वाली लेयर. इट इज़ ऑल्सो -35 both together. तो यहाँ पे मेरे पास शूट करने के लिए आई हैव दिस इन फिंगर विच हेल्प्स मी इन शूटिंग विद माई कैमरा. तो आपको कभी भी अपने पूरे हैंड रिमूव करके शूट नहीं करना है बिकॉज इट कैन गेट यू अ फ्रॉस्ट बाइट और समथिंग लाइक दैट. यू विल बी वेरी अनकम्फर्टेबल. एक अंदर लेयर पहननी है एंड एक बाहर लेयर पहननी है और दैट्स इट. अपार्ट फ्रॉम दैट you must always carry these goggles or a big sized something because everything will be white outside. So it will be very comfortable wearing some goggles outside. You should use the sunscreen and for your food you should always carry घर से आपको लेके आना है कुछ चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट, नट्स, डेट्स, ऑल दैट जो कि आप एक छोटे से पाउच में अपने साथ कैरी कर पाए. बट जैसे स्नो लेपर्ड की साइटिंग होगी आपको वो छोटा सा पाउच और अपने कपड़े पहन के अपने इक्विपमेंट्स लेके भागना है. डोंट वरी अबाउट योर ब्रेकफास्ट एंड लंच, इट विल बी टेकन केयर बाय आवर पोर्टर्स. तो आप वहाँ पे जाके बैठिए, आपके पास अपनी चेयर होगी और आपका जो हॉट ब्रेकफास्ट, हॉट लंच, tea, coffee, whatever you want will be served in the field warm, as warm as in the homestay. So do not worry कि आप अगर स्नो लेपर्ड खींच रहे हैं तो कैसे होगा, सब कुछ हो जाएगा. आपको सिर्फ अपना ड्राई फ्रूट्स और फुल्ली कवर होके जाना है. चलिए, थैंक्स. So here I have my landlord, Mr. Thinley. He is also a tour leader for all our tours and he's a lead naturalist. He's trained naturalist for snow leopards. He's a pro trekker for snow leopards and so far he has helped me a lot in getting all the kind of shots I wanted. So जब भी कोई ग्रुप आता है हम उसको एक ब्रीफ करते हैं कि कैसा आपका टूर होगा, आप कैसे जाओगे. फर्स्ट डे हम आपको आपके स्पॉटर्स से मिलवाएंगे बिकॉज बहुत शेड्यूल वाले से. या सो यू विल मीट योर पोर्टर्स, योर स्कैनर्स ओवर हियर. सब लोग यहाँ पे आएंगे, आपसे मिलेंगे.
अगर आप 6 लोग हैं, जैसे कि मेरे मोस्ट ऑफ द टूर्स में होते हैं, तो 6 के 6 पोर्टर्स आपके पास आएंगे और आपके साथ एक पोर्टर असाइन कर दिया जाएगा और आपको अपने स्पॉटर से भी मिलवाया जाएगा और ये सभी काम थिनले जी करेंगे। तो थिनले जी कैसे होगा, आप थोड़ा बताइए। तो जैसे आपका हमारे पास गेस्ट आ जाते हैं तो चाय वगैरह पिलाने के बाद थोड़ा रिलैक्स करने के बाद तो हम लोग अपने स्कैनर, 2 स्कैनर रहता है, तो 2 जगह पे साइड पे जाएंगे दोनों स्कैनर। तो सारे स्पॉटर को भी, ये अपना पोर्टर को भी ला के यहाँ पे इंट्रोडक्शन करवाते हैं क्लाइंट मतलब गेस्ट से भी और उन अपने लोकल लोगों से भी। तो उसके बाद फिर वो किस तरह से टूर का वो करना है, हर दिन का रोज़ का शाम को बैठ के एक बार डिसाइड होगा कि कहाँ पे क्या क्या, कौन कहाँ पे जाएंगे, स्कैनर कहाँ कहाँ जाएंगे और किस तरह से करेंगे जी। तो ये चीज़ें होता है जी। तो आप जो 2 सबसे इम्पोर्टेंट एरियाज हैं कि बर के, वो कवर करेंगे। जी जी। तो उसमें एक तो हमारा स्नो लेपर्ड हाईवे बोलते हैं, वो है बनंग, जिसका नाम है बनंग, वहाँ पे तो हमारा एक स्कैनर जाएगा ही जाएगा जी। दूसरा आपका ये चिचिम ब्रिज से लेके आपका की मोनेस्टर का एक बहुत बड़ा, बहुत हर टाइम वहाँ पे देखा है, तो वहाँ पे एक स्कैनर जाएंगे। तो बाकी 2 एक जगह है जहाँ पे ऐसी नेटवर्क का सिग्नल वगैरह भी है। तो हमारे कम्युनिटी में एक ऐसा है कि हम लोगों ने आपस में एक यूनिटी बना के रखा है जी। तो किसी को भी दिख जाए तो कम से कम सबको इतला कर देगा। तो इस तरह से ये टूर प्रोग्राम चलते हैं। मेरा एक ही लास्ट में जो भी गेस्ट है उससे रिक्वेस्ट है कि वो कई बार बोलते नहीं है, हिचकिचाते हैं कि यार सर दर्द है, ये बोलते नहीं जी। वो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वो बोलना है कुछ भी तकलीफ होने से, ताकि हमको समझ में आ जाए कि क्या कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ना हाइट होने से थोड़ा बहुत सर दर्द और रहता है। तो प्लीज़ कोई लोग जानबूझ के बोलते नहीं है कि आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा सोच के। तो मेरा वही रिक्वेस्ट है कि वो बोलना है ताकि सबको बराबर पता रहे कि हम उसका केयर कर सकें ना, कि यार वो थोड़ा सर दर्द है तो उसको थोड़ा हाई अल्टीट्यूड पे ले जाने के लिए उसको थोड़ा मना करेंगे ना कि दूसरे दिन जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। या एक बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं और ये वाकई में बहुत ज़रूरी है। लोगों का सवाल होता है कि खुशबू कितना लग्जरी होगा, हमारा स्टे कैसा होगा। तो स्टे तो मैंने आपको दिखाई दिया है, हमारा स्टे कैसा है, हमारे रूम्स कैसे हैं। इट इज़ बेसिक बट वेरी लग्जरी। अच्छा, यहाँ पे कुछ नया भी कंस्ट्रक्शन हुआ है जो कि ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन नहीं है, बट बिलीव मी, अगर आपको -35 और -30 टेम्परेचर में सरवाइव करना है, द ओनली वे इज़ टू स्टे इन अ ट्रेडिशनल काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन। जैसा कि ये हमारा मिट्टी का बना हुआ घर है और इसके बारे में ज़्यादा आपको थिनले जी बताएंगे कि मिट्टी का घर कैसे गर्म होता है, क्यों गर्म होता है। तो अभी बाकी जगह में लोग काफ़ी सीमेंटेड घर भी बना रहे हैं जी। तो उसमें क्या है ना जी, अंदर रह नहीं सकते, इतना ठंड रहता है ना, ठंडा होता है। तो अगर आप ज़्यादातर लकड़ी जलाएंगे तो वो एकदम से गर्म हो जाता है। तो सुबह जब आप देखेंगे ना तो उसके ऊपर वो सफ़ेद का चादर जमना शुरू हो जाता है, स्नो का। तो फिर पानी टपकने लगता है। तो अगर आपको इतना अल्टीट्यूड पे आना ही है तब तो बेस्ट है, मैं तो यही बोलूँगा कि सबसे ज़रूरी है मिट्टी के घर को ही प्रिपेयर करें। और थोड़ा जैसा लग्जरी वगैरह कम रहेगा लेकिन वो काफ़ी गर्म रहेगा, आप कंफर्ट रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं खुद यहाँ पे आ चुकी हूँ एंड ट्रस्ट मी, बाहर -30 टेम्परेचर था और हम अंदर टी शर्ट्स में कंफर्टेबली बैठे, हमें पता भी नहीं चल रहा कि बाहर इतना टेम्परेचर है। एंड दैट्स विदाउट एनी काइंड ऑफ हीटिंग। अगर आप थोड़ा सा भी रूम को हीट कर देते हैं तो वो हीट को प्रिजर्व करके रखता है फॉर द एंटायर नाइट। एक बार अगर आपने ट्रेडिशनल हीटिंग सिस्टम ऑन कर दिया, बंद होने के बाद भी वो पूरी रात आपको गर्म रखेगा। तो इसीलिए फॉर अस इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी हमारा स्टे है वो ट्रेडिशनली बना हुआ हो और वो गर्म रखे लोगों को। बेशक वो सुपर लग्जरी नहीं है, वो बेसिक है, ड्राई टॉयलेट्स हैं, बट द लग्जरी हियर इज़ द कंट्रोल ऑफ द टेम्परेचर। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप मिट्टी के घर में रहें। अगर आप हमारे साथ नहीं भी आ रहे हैं, चूज अ लोकल ट्रेडिशनल होम स्टे, stay with them, enjoy their warmth of hospitality and the way they care and बहुत ही अच्छा आपको ट्रेडिशनल घरों में रह के लगेगा, जो कि एक सीमेंटेड घर के अंदर वो आपको कंफर्ट कभी भी नहीं आ सकता। बस आपको दूर से देखने में फोटोज बहुत अच्छे लगेंगे, बट व्हेन यू आर हियर
आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है। या सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे पार्टिसिपेंट से या लोगों से ये आता है कि खुशबू व्हाट इज़ दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सीइंग अ स्नो लेपर्ड, और मैं हमेशा ये बोलती हूँ 100%। यू नो इट्स नॉट 100% ऑलवेज, वी आर डूइंग अ वाइल्ड लाइफ टूर, कुछ भी हो सकता है, बट सो फार इन माई सो मैनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और इतने सारे हमने ग्रुप किए हैं मिलके, और हमने 100% लोगों को स्नो लेपर्ड की साइटिंग करवाई है। आज तक एक भी ग्रुप बिना स्नो लेपर्ड को देखे हमारा यहाँ से नहीं गया। उसका एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न है द लोकल कम्युनिटी। सो थिनले जी आप बताइए कैसे। यहाँ पे क्या है, ये जो भी ग्रुप वाले आते हैं, पहले तो वैसे भी वाइल्ड लाइफ के लिए 100% बोना बहुत मुश्किल है ना। बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ 7-8 सालों में क्या देखा है कि जो भी ग्रुप आए वो कोई ग्रुप्स ना जी 5-5 दिन लगातार स्नो लेपर्ड देख रहे हैं। मैंने देखा है। हाँ जी, आप खुद मैंने ने 10 आप दिन लगातार देखे स्नो हैं। लेपर्ड देखा है। और कुछ लोग बोले यार आप स्नो लेपर्ड नहीं कुछ और चीजें दिखाओ, कुछ और लैंडस्केप चीजें का दिखाओ। करवा दीजिए। बिल्कुल। तो ये ऐसा माहौल यहाँ पे बना है, और ये खास करके हमारे जो छोटे कम्युनिटी है ना जी, हम लोग एक साथ बिल्कुल मिलके बैठते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इसका मेन वजह यही है जी। यही वजह तो है। किसी के पास भी जाएंगे तो आपको इतना हॉस्पिटलिटी करके ना जी, मतलब सबका एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। रिस्पेक्ट है। तो यही इसका रीज़न होगा जी, यही हम बता सकते और हैं। इन लोगों का एक ग्रुप है, अगर स्नो लेपर्ड की साइटिंग होती है ग्रुप पे आपको मैसेज आ जाता है कि स्नो लेपर्ड की साइटिंग है, और गांव में ऐसा कोई भी टूरिस्ट नहीं बचता जो कि स्नो लेपर्ड देखने ना जाए। तो अगर स्नो लेपर्ड दिखा है तो आपको 100% दिखेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी और के ग्रुप को मिला आपको नहीं मिला। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द यूनिटी ऑफ द नेचुरलिस्ट विद इन द विलेज, द पीपल ऑफ द विलेज, इनकी कम्युनिटी। सो आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, किब्बर की कम्युनिटी पे ट्रस्ट कर सकते हैं। दे विल डू देयर 200% to show you a snow leopard. And apart from snow leopard, there is a lot to see. You know, this place is insane and you will love coming here back to back. Yeah. So I have a request from all our tourists, whether they are coming with us or even if they are going somewhere else. आपसे एक बहुत ज़रूरी मेरी रिक्वेस्ट है, जो एंड ये एक बहुत बड़ा इशू है। वी ऑल नो इट्स अ ग्लोबल इशू, यू नो, द प्लास्टिक एंड द वेस्ट। और प्लास्टिक और वेस्ट जो हमारे मेट्रो सिटीज़ में है वो रिसाइकल होता है, बट जो प्लास्टिक और वेस्ट यहाँ तक पहुँच जाता है और जो लोग यहाँ छोड़ के चले जाते हैं उसका रिसाइकलिंग बहुत ही मुश्किल है। तो इन ऑल आवर टूर्स व्हाट वी डू इज़ जितना भी प्लास्टिक और वेस्ट आता है साथ में वो सब एक बड़े पॉली बैग में रख के हम वापस चंडीगढ़ या फिर दिल्ली तक लेके जाते हैं। तो अगर आप अपने साथ कुछ भी रैपर्स या वाटर बॉटल या यू नो एनीथिंग विच इज़ नॉट रिसाइकलेबल ईजीली, जो यहाँ पर रिसाइकल नहीं हो सकता, आप सब कुछ एक बड़े पॉली बैग में लेके जाइए साथ में। दिस विल हेल्प अ लॉट इन protecting this small beautiful place, the integrity, the you know solitude of this place। बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि एट द एंड वो जो प्लास्टिक है वो आप यहाँ वहाँ देखेंगे। स्नो में तो आपको वो सारा प्लास्टिक दिखता ही नहीं है, बट इफ यू विल कम इन समर मंथ्स आप देखेंगे कि चारों तरफ गेस्ट जो भी टूरिस्ट आए हैं उनकी वजह से मैगी के रैपर, चीज़, दिस चिप्स एंड यू नो वाटर बॉटल्स एवरीवेयर, वो वहाँ की भेड़ खा रही है। समटाइम्स यू नो द वाइल्ड लाइफ इज ऑल्सो ईटिंग दैट, यू नो, अगर आप और वाइल्ड लाइफ को आपका स्नो लेपर्ड खा रहा है तो कहीं ना कहीं यू नो वी आर रीचिंग टू द टॉप ऑफ द चेन, और कहीं ना कहीं हम अपना इम्पैक्ट यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, जो कि हमें अपना कार्बन फुटप्रिंट बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं छोड़ के जाना है। यहाँ पे सिर्फ आपको अपना यहाँ से आपको सिर्फ अपनी मेमोरीज लेके जानी है, अपने फोटोज लेके जाने, प्लस आपको अपना जो प्लास्टिक वेस्ट है वो भी वापस लेके जाना है। दिस विल रियली हेल्प दिस प्लेस, द पीपल, द मैनेजमेंट, और रियली यू नो इट विल बी अ बिग सपोर्ट कि अगर आप अपना वो जो भी थ्रैश है वो एक थैली में डालें और वापस लेके जाएं। सो दिस इज एन अर्ज फ्रॉम मी एंड द लोकल कम्युनिटी एज वेल। GoPro, stop recording. Yeah.
So, another question comes is how to prepare yourself for high altitude. So लोग बहुत प्रिपरेशन करते हैं, बहुत प्रिपरेशन से यहाँ पे आते हैं, बट जब वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो समहाउ जो जो प्रैक्टिकली रूल्स जो फॉलो करने हैं उस ऑल्टीट्यूड से कोप अप करने के लिए वो नहीं फॉलो होता है, और कहीं ना कहीं वो इशू छोटा से बड़ा बन जाता है और वो फेटल भी हो सकता है और हो चुका है इन पास्ट. सो आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है. जब आप अपने घर से निकलेंगे उससे पहले की प्रिपरेशन मैंने आपको बताई, क्विट स्मोकिंग, क्विट ड्रिंकिंग, स्टार्ट वर्किंग आउट, टेक मोर गार्लिक सूप पीजिए आप रोज. उसके बाद जब आप ट्रेवल कर रहे हैं बहुत पानी पीजिए. आप ये मत सोचिए कि आपको बार बार लू जाना पड़ेगा, क्या होगा, नहीं. अगर ऑल्टीट्यूड सिकनेस से आपको बचना है तो आपको डबल पानी पीना पड़ेगा जितना कि आप नॉर्मली पीते हैं. उसके बाद जब आप यहाँ पे होम स्टे में आ जाते हो, आप गर्म पानी पीजिए, गर्म चाय पीजिए, सूप पीजिए, वेजिटेबल्स खाइए, बिल्कुल बेसिक खाना खाइए. अगर आपको थोड़ा भी अनकंफर्ट है या थोड़ा भी हेडेक है या आप सो नहीं पा रहे हैं और यू आर फीलिंग लाइक यू कांट ब्रीथ, प्लीज इस इशू को छुपाना नहीं है. आपको अपने होस्ट को ये चीज बतानी है, क्योंकि ये जो AMS का इशू है वो बहुत ही अर्ली स्टेज पे ठीक किया जा सकता है, बट एक बार 2 दिन आपका वो कंटिन्यू हो गया, देन आपको वापस ही जाना पड़ेगा. वापस आपको एटलीस्ट रामपुर तक जाना पड़ेगा और कोई सॉल्यूशन नहीं है. तो आपको डे 1 पे बताना है आपका लेवल ऑफ कंफर्ट क्या है. अगर आप बता देंगे तो हो सकता है कि आपकी ज़्यादा केयर की जाएगी, आपको ज़्यादा पानी दिया जाएगा, आपको कुछ लोकल चीज़ें भी दी जाएगी जो कि ऑल्टीट्यूड में हेल्प करती है. गार्लिक का सूप आपके साथ बहुत आपको अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, और हो सकता है कि नेक्स्ट डे तक आपका वो ऑल्टीट्यूड सिकनेस. लेकिन अगर आपने वो चीज़ छुपा ली, आपको लगा कि शायद बताने से कुछ इश्यू हो जाएगा या लोग सोचेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. वो इश्यू बढ़ जाएगा और 2 चीज़ें होंगी, या तो आपको फिर मेडिसिन पे आना पड़ेगा या फिर एट द एंड आपको रामपुर जाना ही पड़ेगा. सो प्लीज़ ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, लॉट ऑफ हॉट थिंग्स. कुछ भी जो भी आपको पसंद है, अगर आपको हॉट चॉकलेट पसंद है आप अपना पाउडर लेके आइए घर से. अगर आपको कोई पर्टिकुलर सूप पसंद है आप वहाँ से अपना सूप का पैकेट्स लेके आ सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि लोकली ये आपको गार्लिक वाटर प्रोवाइड करे, हॉट गार्लिक वाटर, वो यहाँ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा. चाय आप पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, जो मर्जी पीजिए, बट कीप ड्रिंकिंग हॉट स्टफ और अपने आप को हाइड्रेट रखिए. पी बार बार जाना पड़ेगा, जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. उसके बाद भी अगर आपको इशू होता है प्लीज इन्फॉर्म अस, प्लीज इन्फॉर्म योर होस्ट. सो डू नॉट हेजिटेट. दैट्स इट. GoPro, stop recording. Yeah. So like you are here for 6 to 7 days, which is a minimum period in all our tours, and if you're done with your snow leopard excursions, you've got your shots, you've got your landscape, other mammals, ibex, burhel, whatever you wanted to shoot. Now you have time and you're interested in doing the culture or landscape. So we give the opportunity to people to explore the landscape as well as the culture. Winters may there are lot of festival which happens at Ki Gompa, Ki Monastery, which is like 7 kilometer away from Kibber, and you must have seen it on the way coming to Kibber from Kaza. So वहाँ पे बहुत सारे festival हो सकते हैं and you can go and explore that, and Thinle ji will tell about more of these festivals. तो आपका सारे लोग तो वैसे भी स्नो लेपर्ड के लिए आते हैं. अगर सब चीज़ें अच्छे से कायदे से हो गए हैं तो उसके अलावा भी यहाँ पे स्पीति में हमारे किब्बर में काफ़ी लोकल फेस्टिवल्स भी बहुत होते हैं जी. तो लोग बहुत वार्म वेलकमिंग करेंगे. तो आपने भी उसका रिस्पेक्ट करना है, हम भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. आप किसी भी फेस्टिवल चले जाएंगे तो आपको कोई ना नहीं बोलेगा, तो आपको बहुत वेलकमिंग करेंगे, वार्म वेलकमिंग करेंगे. तो यहाँ पे उस दौरान जो सर्दियों का है उसमें काफ़ी फेस्टिवल्स लगते हैं यहाँ पे ना. तीर अंदाज बोलते हैं, मेंदोक बोलते हैं, दचंग बोलते हैं, वो सारे आप उसको भी अगर आप चाहें तो कल्चर के साथ साथ वो भी देख सकते हैं. जी. Yeah. So there's a lot to explore, and I think it's time to come to Spiti in winters, of course for snow leopard, but also for other things. GoPro, stop recording.
So, good morning, and this is a beautiful morning from Kibber village, which is on high altitude of Spiti. And most welcome to incredible snow leopard expeditions in Kibber and Spiti. And I'm so thankful to all my local host and this place and snow leopards that we got a chance to come here many years back, and slowly we made this our home. And every year in winters we spend most of our time in Kibber and we shoot a lot of snow leopards. Yeah. So welcome to incredible snow leopard expeditions, all here from Kibber. Right now I'm at Kibber and it's been a long time since I'm here, and you must have seen my other videos, and if you haven't seen, please go and see the other videos about how a snow leopard expedition looks like and the services and blah blah blah. But here in this video I want to tell you all that this is the best place to come for snow leopards and winter expeditions, and in summers the trekking and the landscaping and lot more. And we at Incredible Birding are glad to host you, and we wish that you will come with us and give us a chance to host you and your group and your family and your friends for our snow leopard expeditions and lot of expeditions. And with me here is my friend Thinley from Kibber, and together we are running the show. And so far we have done multiple tours, multiple expeditions, multiple snow leopard sightings, and we have delivered 100% successful expedition so far. And we hope that we will continue doing this great work in future also. So for all your queries related to snow leopards, related to snow expeditions, related to summer trekkings, related to stay in winters in Kibber and Kaza, and traveling all the way to Kibber and shooting the snow leopards, and all kind of queries are welcome. And you must give us a chance to host you and to show you the most elusive cat of this world, and which is snow leopard. And we can guarantee that we will make it much more successful and memorable than you think it should be. GoPro, stop recording. तो एक बार खुशबू जी और राहुल जी के साथ हमारे स्पीति में आके एक बार हमें मौका दीजिए, और सबसे अच्छा हम लोग स्नो लेपर्ड दिखाएंगे, और सबसे अच्छा खाना वगैरह खिलाएंगे, और सबसे अच्छा रहने का भी करेंगे, और सारा चीज़ें करेंगे। Yeah, so and you can trust us on हमें एक बार मौका दीजिए कि definitely किस तरह से हम लोग कराते हैं, और एक बार होने के बाद फिर आप बार बार आने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल। एंड वी हैव, हमने लोगों को बार बार स्नो लेपर्ड करवाया है, बहुत सारे टूर्स हमारे पास वापस आए, बट मोस्ट ऑफ देम डिडंट कम फॉर स्नो लेपर्ड। इस टाइम कुछ लोगों ने हमारे से बोला कि हमें स्नो लेपर्ड की जगह कल्चर करना है, बिकॉज देव गॉट मेमोरी फुल ऑफ मेटिंग एंड the cubs and lot more sightings. So आप आइए स्पीति, और बेफिक्र आप हम पे ट्रस्ट कीजिए, हमारी हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय कीजिए, एंड वी विल डेफिनेटली डिलीवर यू अ सक्सेसफुल टूर। जुले। जुले। GoPro, stop recording.